Now what happens to the acids and bases when they are dissolved in water? We know that in aqueous state, the substances or the compounds or elements, whatever they release their ions. Okay, that's why all the reaction take place in aqueous state. I mean, at least one of the reactant has to be in aqueous or moist state for the reaction to take place. Okay, so we see that the acids, they break down into H plus ion and the negative ion that is there. If we have HCl, it will be dissociated into H plus ion and Cl minus. Okay, and H2O, water that was there, it is not reacting with it, it is just helping it out to release its ions. Okay, so now it combines with the positive ion that was present, that is the H plus ion, and now it becomes C. We have 2 hydrogen here, one more if it joins, we have 3 hydrogens now, right? So it will become H3O, and it will come with its charge also. H3O plus is the ultimate ion that we are getting with the dissolution of acids. Okay, when bases are dissolved in water, we get OH minus ions. So the presence of H plus ion show the presence of acid in water. The presence of OH minus ion show the bases in water. Okay. Now we have already seen the neutralization reaction. When acid and base react, salt is formed. This salt is formed out of the cation and anion that combine. Okay, so the dissociation in water gives rise to the concept of pH. Okay, this pH is nothing but the number of H plus ion present in the water. Okay, in the solution. So like we dissolve 1 spoon of sugar in 1 glass of water. Okay, we will say that it is the sugary solution. If we add more sugar to it, it will become more sweet. ठीक है ना, sweetness बढ़ जाएगी. That means जो दूसरा वाला केस था उसमें we have more मीठा. Similarly, when the H plus ions are more, the substance is considered to be more acidic. जो amount of H plus है, that will decide the pH of a particular substance. जितना ज़्यादा H plus होगा, उतना वो substance acidic होगा. As the amount of H plus reduces, the substance moves towards the basicity. Okay, मतलब हम 0 से अगर स्टार्ट करें तो मैक्सिमम H plus ions are released in the case. जैसे HCl को हम डिसॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा H plus ions हम ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, हम लेमन को डिसॉल्व करेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं लगेगा. It is acidic but less acidic than the HCl और H2SO4. ठीक है, सो दिस इज़ अ रेंज बेसिकली. तो एक पैरामीटर है हमारे पास H प्लस का, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो एसिड है. एज द अमाउंट ऑफ H प्लस रिड्यूसेस, इट मूव्स टूवर्ड्स न्यूट्रलिटी. एक न्यूट्रल सॉल्यूशन आएगा जहाँ पर वो सॉल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक है, और फिर एसिडिटी और रिड्यूस होती जाएगी एंड इट विल मूव टूवर्ड्स द बेस. तो जब हम बेस की तरफ जा रहे हैं तो OH माइनस आयन ज़्यादा होंगे, बढ़ते जा रहे हैं. जब हम एसिड की तरफ जा रहे हैं तो H प्लस आयन बढ़ते जाएंगे. OH माइनस आयन ज़्यादा है, इसका मतलब H प्लस कम ही है ना. देखिए, द बेसिस आर रिलीजिंग OH माइनस. ठीक है, सो दैट्स हाउ द बेसिसिटी विल इंक्रीज. एंड हाउ इज इट जज्ड? जैसे आपका स्केल होता है वैसे ही वी हैव अ शेड कार्ड और एंड अ यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है, दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर इज कॉल्ड pH इंडिकेटर and it will give color with every
solution that is placed on it. It comes in liquid form also, it comes as strip also. ठीक है, तो जब किसी भी सब्सटेंस के साथ इसको कंबाइन करेंगे इट विल डेफिनेटली गिव कलर. लिटमस की तरह नहीं है कि सिर्फ एसिड या बेस के साथ कलर दिया, या फिर नॉफ्थलीन की तरह नहीं है कि सिर्फ बेसिस के साथ कलर दिया. इट विल गिव कलर, इट विल चेंज इट्स कलर विद एवरी सब्सटेंस. अब वो कलर कैसा होगा? इट माइट बी ग्रीन, इट माइट बी ब्लू, इट माइट बी रेड, डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, तो H प्लस आयन कितने हैं उसके हिसाब से वो शेड्स देता है. तो दिस शेड कार्ड इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू विच वी कैन मैच द कलर ऑफ द सब्सटेंस दैट वी फाउंड एंड दैट इज देयर ऑन द शेड कार्ड. ठीक है, इसका जो pH वाला मैंने वीडियो भेजा था, pH स्ट्रिप में जब हमने pH स्केल से मैच किया था, वो वाला वीडियो आप दोबारा देखिएगा. इट विल बी मोर क्लियर टू यू. नाउ कमिंग टू वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड. अब एसिडिटी हमारी डिफाइन होती है H प्लस आयन से, सो ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेंथ भी डिफाइन होगी H प्लस आयन से. ठीक है, द मोर वी हैव H प्लस आयन द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. जितना ज़्यादा हम चीनी डालेंगे पानी में उतना ज़्यादा वो मीठा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सिमिलरली द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अमाउंट ऑफ H प्लस आयन्स. ओके, तो जितने ज़्यादा H प्लस आयन्स होंगे और उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जितने लेस H प्लस आयन रिलीज होंगे उतना ही वो वीक बेस होगा. ठीक है, सॉरी वीक एसिड होगा. इन केस ऑफ बेसिस वी कंसिडर इट इन टर्म्स ऑफ OH माइनस. जितने OH माइनस लेस होंगे उतना वीक बेस होगा. ठीक है, और जैसे जैसे H प्लस कम होते जाएंगे द सब्सटेंस विल मूव टुवर्ड्स द बेसिसिटी.